Hello, good morning everyone. Today we discuss a important topic of yoga education at limbs of yoga. Firstly, we see the educational objectives. First educational objective is student able to recall and recognition of concept of at limbs of yoga. Student able to recall and recognition of history of at limbs of yoga. And third is student able to recall and recognition of types of at limbs of yoga. And fourth is student able to compare among various types of at limbs of yoga. Student able to apply of at limbs of yoga in their life. Yogic exercise recharge the body with cosmic energy and facilities. Attainment of perfect equilibrium and harmony. Second is promotes self-healing. Third is removes negative blocks from the mind and toxins from the body. And enhance personal power. And next is increase self-awareness, helps in attention, focus and concentration, especially important for children and student. Reducing stress and tension in the physical body by activating the parasympathetic nervous system. Eightfold path of Patanjali, it's called Ashtanga Yoga. There are first five is called external parts and last three is internal part. Yama, Niyam, Asan, Pranayam and Pratyahar. First five is called external parts. Yama is called restraints, Niyama is observance, and Asana is body posture, and pranayam is regulation of breath, and pratyahar is abstraction of senses. And internal parts, dharana means concentration, dhyana means meditation, and final and peak limbs of the Ashtanga Yoga, samadhi is called self-realization. Firstly we see yama and niyama. Yama restraints. There are five yama according Patanjali Sutra. First is ahimsa. Yama is a rules of social discipline. First is ahimsa. It means non-harming of any living being. Second is satya. Satya means truthfulness. And third is aste. Aste means non-stealing. And fourth is brahmacharya. Brahmacharya means continence. And fifth and last is aprigraha, non-possessiveness. After yam, we may discuss niyam. Niyam, observances. This is a rules of individual discipline. There are five. First is soch. Soch means cleanliness. Second is santosh. It means contentment. And third is tapa. It means austerity. And fourth is swadhyay. It means inner exploration. We may say swadhyay is self-study and self-exploration. And fifth is Iswar Pranidhan. It means surrender to God, surrender to everything for God. We do any action for name of the God. And third, asanas, it means body posture.
Asan is the Sanskrit word for posture. We may classify the posture in three types. First is meditative posture, second is relaxing posture, and third is cultural posture. Meditative posture, in which we may perform meditation. Uh, for example, Padmasana, Kamalasana, Siddhasana, Sukhasana, and Swastikasana. There are many postures for meditation. Second type is relaxing posture. When we do that type of posture, we feel relaxing. Savasana, Makrasana, Bhujangasana, there are relaxing posture. Third is cultural posture. Bhujangasana, Ustrasana, Singhasan, Makrasana, Marjarasana, Tadasana, there are cultural posture. Fourth part of the Ashtanga Yoga is pranayam. Pranayam means regulation of breath. Pranayam means a pause in the movement of breath for getting success in pranayam. Perfection in practice of asana is prerequisite. Some important practice of pranayam are Ujjayi pranayam, Bhramari pranayam, Bhastrika pranayam, and Sitali pranayam. We see there are many benefits, lot of benefits of pranayam, but important benefits is the regulation of breath. Pranayam gives to body lightness and turning away for the senses from material object. It increases the spiritual power and confers cheerfulness and inner peace. Fifth part of the Ashtanga Yoga is Pratyahar, abstraction of senses. It means Jnanendriya. Pratyahar is withdrawal of the senses of cognition and action from both the external world and impressions in the mind field. Benefits of Pratyahar is, as a result of this abstraction, there is complete mastery of the sense organs. Yogeshwar. And Dharana, it means concentration. Concentration is the process of holding or fixing the attention of mind onto one object or place. Benefits of Dharana is, by this practice, mind attains the ability to be focused on object of contemplation. Next limbs of the Ashtanga Yoga is Dhyana. It means meditation. Dhyanam nirvishyam manah. Dhyanam nirvishya manah. That state of the mind wherein there are no vishay or sensory thought is meditation. There are three types of dhyana: स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान, and ज्योतिर्ध्यान. First we see स्थूल ध्यान, contemplation of the image, and सूक्ष्म ध्यानम, contemplation of the serpent power, and in ज्योतिर्ध्यानम, contemplation of the internally aroused light in the higher stage of meditation. Benefits of dhyana: it is meditation hereby practitioner realize his self. Through meditation is usually recognized
as a largely spiritual practices. It also has many health benefits. It leads to deeper level of relaxation, reduce anxiety, decrease muscle tension and headache. Last and final limbs of the yoga is samadhi, self-realization. Samadhi is deep absorption wherein only the essence of that object, place, or point shines forth in the mind. According to Hatha Yoga, rousing of Kundalini and its union with Shiva at the Sahasrar Chakra is the final stage of Samadhi and Mukti. Mukti means when we are free from three types of suffer: आदि भौतिक, आदि देविक एंड आध्यात्मिक। तीन प्रकार के दुखों से पूर्णतया मुक्त होना ही मुक्ति है। तीनों प्रकार के दुख, आदि भौतिक दुख, जो हमारे शरीर से संबंधित जितने भी प्रकार के दुख हैं वह सब आदि भौतिक दुखों के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि शरीर का कटना, शरीर को कष्ट होना, सिर का दर्द होना, किसी भी प्रकार की चोट लगना, ये सब आदि भौतिक दुखों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट इज आदि दैविक दुख, जो देवीय शक्ति के कारण जो भी दुख हमें प्राप्त होते हैं वह सब आदि दैविक दुख में आते हैं। जैसे पाप, पुण्य, आत्मा, प्रात्मा, आत्मा, भूत, प्रेत, ऊपरी हवा, जो भी इस प्रकार के दुख होते हैं वह सभी आदि दैविक दुख में आते हैं। और थर्ड है आध्यात्मिक दुख, जो भी हमारी आत्मा और परमात्मा से संबंधित जो दुख होते हैं, स्वर्ग नरक से संबंधित जो भी दुख होते हैं वह सब आध्यात्मिक दुखों के अंतर्गत आते हैं। We see importance of yoga. Yoga is not a religion. It is a way of living whose aim is a healthy mind in a healthy body. योगा कोई एक धर्म नहीं है बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है जिसका उद्देश्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करना है। शरीर स्वस्थ रहे और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहे, इस प्रकार का उद्देश्य लेकर जो शिक्षण शास्त्र चलता है उसे हम योग शिक्षा कहते हैं। मैन इज ए फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल बीइंग। मनुष्य भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्राणी है। योगा हेल्प्स प्रमोट अ बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ ऑल द थ्री। इन तीनों प्रकार का संतुलित विकास को योगा प्रमोट करता है, परिवर्धित करता है, सपोर्ट करता है। अदर फॉर्म्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज लाइक एरोबिक्स एश्योर ओनली फिजिकल वेलबींग। और जो अन्य प्रकार की जो भौतिक एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्सरसाइज है, शारीरिक एक्सरसाइज जैसे कि एरोबिक्स, वह केवल भौतिक या शारीरिक वेल बीइंग को ही एश्योर करते हैं, जबकि दे हैव लिटिल टू डू विद डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल एंड एस्ट्रल बॉडी। जबकि हमारा योग शास्त्र है, योग शिक्षा है, योग दर्शन है, वह भौतिक शरीर के साथ साथ आध्यात्मिक और सूक्ष्म शरीर के विकास को भी एश्योर करता है। योगिक एक्सरसाइज recharge the body with cosmic energy. This facilitates attainment of perfect equilibrium and harmony, promote self-healing. सेल्फ हीलिंग को प्रमोट करने में और
परफेक्ट, पूर्णतया समानता, साम्यता और हार्मनी स्थापित करने में यह बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, सुविधा उपलब्ध करवाता है। रिमूव्स नेगेटिव ब्लॉक्स फ्रॉम द माइंड एंड टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। इसका नेक्स्ट जो कार्य है वह हमारे माइंड से नेगेटिव जो ब्लॉक्स बन जाते हैं उनको हटाना है, और बॉडी के अंदर से जो नेगेटिव टॉक्सिन्स हैं उसको रिमूव करने का कार्य भी योग एक्सरसाइज करती है। साथ ही साथ एनहांस पर्सनल पावर, इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, हेल्प इन अटेंशन, फोकस एंड कंसंट्रेशन। इनके अलावा और क्या क्या काम करते हैं? पर्सनल पावर को बढ़ाता है, सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज करता है, अटेंशन में सहायता देता है, फोकस और कंसंट्रेशन और अटेंशन तीनों में भी योगिक एक्सरसाइज सहायता प्रदान करता है। स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, रिड्यूस स्ट्रेस एंड टेंशन इन द फिजिकल बॉडी बाय एक्टिवेटिंग द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस system. Next, benefits of yoga. The art of practicing yoga helps in controlling an individual mind, body and soul. It brings together physical and mental discipline to achieve a peaceful body and mind. It helps to manage stress and anxiety and keep you relaxing. ये स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करता है ताकि आप रिलैक्स रह सकें। It also helps in increasing flexibility. ये आपके शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। मसल्स स्ट्रेंथ एंड बॉडी टोन, तीन चीज़ें बढ़ाता है ये। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, मसल्स स्ट्रेंथ बढ़ाता है और बॉडी को टोन में रखता है, बॉडी को शेप में रखता है। जहाँ कहीं पर फ्लेश ज़्यादा है उसको कम करता है और बॉडी अच्छी तरीके से फिट रहती है, बॉडी टोन में रहती है। इट इम्प्रूव्ड रेस्पिरेशन, एनर्जी एंड वाइटिलिटी, और ये श्वसन क्रिया को इम्प्रूव करता है, प्राण को इम्प्रूव करता है, ऊर्जा और जीवंतता को भी इम्प्रूव करता है। प्रैक्टिसिंग योगा माइट सीम लाइक जस्ट स्ट्रेचिंग, बट इट कैन डू मच मोर फॉर योर बॉडी फ्रॉम द वे यू फील, look and move. Yoga for children and yoga for old people. You see in this picture the student and children do yoga. The student sitting in Sukhasana and meditative posture. And you see next picture a doctor and an old man. This is a laughing therapy, this is a yoga practice. After the atoms of yoga and importance of yoga, we discuss about Surya Namaskar, sun salutation. Yoga seminar and as or yogic practice is a comprehensive exercise which contributes to mental, emotional, physical and spiritual well-being. The Surya Namaskar is an obeisance to the sun god
और सूर्य, भगवान सूर्य को नमस्कार करना। सूर्य नमस्कार इज नॉर्मली परफॉर्म्ड अर्ली इन द मॉर्निंग एट daybreak और in the evening when the sun is setting। सूर्य नमस्कार हो सके जहाँ तक सामान्यतया दो समय करना चाहिए। पहला है सुबह जब सूर्योदय होता है, दूसरा इवनिंग के समय जब सूर्यास्त होता है। ये दोनों समय ही सबसे अच्छे माने गए हैं भगवान सूर्य को नमस्कार करने के लिए। इट इज accompanied by a specific breathing pattern and chanting of mantras। सूर्य नमस्कार के अंतर्गत ब्रीदिंग का एक स्पेशल पैटर्न होता है, उसको फॉलो करना चाहिए और विशेष मंत्र का भी उच्चारण करना चाहिए। जैसे पहली मुद्रा के अंदर जैसे आपने पूरक प्राणायाम का पूरक किया, मतलब आपने श्वसन अंदर किया। नेक्स्ट पोस्चर में आप कुंभक क्रिया कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और नेक्स्ट पोस्चर के अंदर या नेक्स्ट मुद्रा के अंदर आप रेचक क्रिया करेंगे। तो इस प्रकार से ब्रीदिंग का एक पैटर्न हो जाता है। श्वसन को लिया, वी टेक ऑक्सीजन एंड आफ्टर वी होल्ड प्राण ऑक्सीजन फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 minutes। आफ्टर कुंभक वी परफॉर्म रेचक क्रिया। Before the starting of the Surya Namaskar, we must chanting a mantra for a first round as Om Suryaya Namah। After this mantra, we perform 12 mudras and 12 asanas। We see you see in the picture 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। There are 12 posture, 12 mudras in Surya Namaskar। We complete the first round with Om Suryaya Namah। When we starting second round with ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र के बाद में आपको पूरा 12 स्टेप करना है। उसके बाद में नेक्स्ट मंत्र आप पढ़ेंगे ओम दिनकराय नमः। उसके बाद फिर 12 स्टेप करेंगे, फिर आप ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार से एक चक्र पूरा करने के लिए आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। जैसे कि ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। और जब आप मंत्र उच्चारण करेंगे उससे पहले आप श्वसन को अंदर लेंगे। Step of Surya Namaskar। There are 3 forms of Surya Namaskar। Surya Namaskar A and Surya Namaskar B are fast-paced and part of Ashtanga Yoga is therapy। A टाइप और B टाइप का जो सूर्य नमस्कार है वह तेज गति से किया जाता है और वह अष्टांग योग के एक थेरेपी के रूप में है। सूर्य नमस्कार A, दिस फॉर्म ऑफ योगा comprise 11 steps to be performed with each leg। प्रत्येक पाँव से पहले एक पाँव से पहले दाएं पाँव से फिर बाएं पाँव से 11 स्टेप का एक चक्र पूरा करना है। और ये ध्यान रखना है हर चक्र के साथ में एक मंत्र का उच्चारण करना है। सूर्य नमस्कार टाइप बी, दिस फॉर्म ऑफ योगा comprise
19 steps to be performed with each leg. This form of exercise is characterized by a warrior pose. वीर मुद्रा के रूप में इसको चिन्हित किया गया है। यौन मुद्रा के रूप वीर मुद्रा के रूप में भी इस एक्सरसाइज को किया जा सकता है और इसमें 9 स्टेप होता है, जबकि टाइप ए में 11 स्टेप होते हैं। सूर्य नमस्कार सी। दिस ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ योगा कंप्राइज ऑफ 12 स्टेप विच इज परफॉर्म्ड विद ईच लेग। ये 12 स्टेप की होती है और प्रत्येक लेग से, प्रत्येक पाँव से 12 स्टेप को परफॉर्म किया जाता है। पहले एक पाँव के, पहले दाएं पाँव से, फिर बाएं पाँव से। साइलेंट फीचर ऑफ योगा एजुकेशन। योगा इज अ वे ऑफ लाइफ, नॉट ए साइंस। जैसा हमने, नॉट ए रिलीजन, जैसा हमने पहले बताया कि योग एक जीवन जीने का तरीका है, जीवन का परफॉर्म करने का तरीका है। एक धर्म नहीं है बल्कि एक जीवन कला है, जीवन संस्कृति है। योगा कैन बी डिफाइंड एज साइंस ऑफ हेल्थ। हम योगा को स्वास्थ्य का विज्ञान के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। साइंस ऑफ हार्मनी, हार्मनी एंड हैप्पीनेस, सामंजस्य और आनंद के विज्ञान के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। प्योरली इन थ्योरेटिकल साइंस, योगा इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रियलाइजिंग द एब्सोल्यूट। जो योगा है वह साइंस और कला, विज्ञान और कला दोनों के रूप में है। द अल्टीमेट रियलिटी और सुप्रीम कॉन्शियसनेस, ताकि अल्टीमेट रियलिटी और सुप्रीम कॉन्शियस को आप प्राप्त कर सकें। योगा एजुकेशन के साइलेंट फीचर में जो अन्य जो पार्ट हैं वो क्या है? देयर आर योगा एजुकेशन एम्स टू इम्पार्ट योगा टीचिंग in a pattern which may be termed as holistic living, as physical, mental, emotional, intellectual, social and spiritual well-being. There are 4 factors of yoga education. First factor is teacher, it means guru, professor. Second is student, in B.Ed and M.Ed student, school student, higher education student. And third is teaching, and fourth is knowledge. Relation between yoga and other form of education. Other form of education varies between 2. They are either purely theoretical forms of education. यदि हम योगा का अन्य विषयों के साथ संबंध देखते हैं तो जो अन्य विषय हैं वह पूरी तरीके से शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष के रूप में हो सकते हैं, सैद्धांतिक रूप में हो सकते हैं, या फिर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ योगा, फॉर्म ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल फॉर्म के रूप में हो सकता है। बट योगा एजुकेशन इंक्लूड्स थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल आस्पेक्ट। जबकि योगा एजुकेशन है उसके अंतर्गत थ्योरी और सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ आध्यात्मिक पक्ष को भी इसमें शामिल किया जाता है।
After this, we discuss some MCQs related to yoga education. Every yoga teacher must start the practice session with. पहला जो प्रश्न है उसमें कि एक योगा टीचर को कोई भी प्रैक्टिस सेशन कहाँ से शुरू करना चाहिए. ऑप्शन ए प्राणायाम, ऑप्शन बी आसन, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी साइलेंस. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. प्रत्येक टीचर को प्रैक्टिस सेशन, योग का जब भी प्रैक्टिस सेशन शुरू करें वह आसन से शुरू करना चाहिए. सबसे पहले माइक्रो एक्सरसाइज करवाएं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कराएं, वार्मिंग एक्सरसाइज करवाएं, जिसमें आसन भी सम्मिलित हो जाता है. तो हमेशा आसन से शुरू करें, आसन के बाद ही सेशन को शुरू किया जाए. प्राणायाम करवाया जाए, और भी मुद्राएं करवाई जाए, ध्यान करवाया जाए, समाधि कराई जाए, मेडिटेशन करवाया जाए, कुछ भी करवाया जाए, शुरुआत हमेशा आसन से की जानी चाहिए. क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 5 टाइप्स ऑफ यम अकॉर्डिंग टू पतंजलि आर. जो 5 प्रकार के जो यम है पतंजलि के अनुसार वह कौन कौन से हैं. ऑप्शन ए अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचार्य एंड आसन. ऑप्शन बी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य एंड अपरिग्रह. ऑप्शन सी सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह एंड ध्यान. ऑप्शन डी अस्तेय, ब्रह्मचार्य, सत्य, ध्यान, आसन. चारों ऑप्शनों को आप यदि ध्यान पूर्वक देखेंगे तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 जो यम है वो क्या है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह. अन्य ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं. पहले ऑप्शन में जो 4 हैं वह तो यम ही है, लेकिन जो 5वां जो आसन है वो अष्टांग योग का एक लिम्स है. सी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो 4 तो आपके यम ही हैं, लेकिन 5वां जो ध्यान है वह क्या है, अष्टांग योग का एक अंग है. ऑप्शन सी के बारे में बात करते हैं. 3 आपके यम हैं, जबकि 2 ध्यान और आसन वह आपके 8 लिम्स ऑफ योगा के 2 लिम्स हैं. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 3. फॉर स्मॉल ग्रुप 6 and 8 स्टूडेंट, द इफेक्टिव सीटिंग अरेंजमेंट इन टीचिंग योगा इज. जब भी आप योगा टीचिंग करवाएं, योगा करवा रहे हो, यदि छोटा ग्रुप है तो उनमें बच्चों को उनका जो सीटिंग अरेंजमेंट है वह किस प्रकार का होना चाहिए. ए सेमी सर्कुलर, बी सर्कुलर, सी रो, डी कॉलम. यदि ग्रुप छोटा है तो सेमी सर्कुलर में सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, और वह जिस सामने टीचर सामने होगा ताकि वह सभी के ऊपर प्रॉपर तरीके से ध्यान दे सके. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 4. गीता आल्सो नॉन एज. गीता को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है. योग शास्त्र, न्याय शास्त्र, सांख्य शास्त्र, नन ऑफ द अबव. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. गीता को योग शास्त्र भी कहते हैं और गीतो उपदेश भी कहते हैं, गीतो उपनिषद भी कहते हैं.
गीता के 3 नाम और हैं, योग शास्त्र, गीतोपदेश और गीतोपनिषद। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, गुरु इज द वन हु डिस्पेल्स, कि गुरु एक वह है जो क्या करता है, अपने जितने भी शिष्य हैं उनके साथ में क्या करता है। डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, अंधकार, अज्ञान का अंधकार दूर करता है। लाइट ऑफ एरोगेंस, अहंकार की लाइट दूर करता है। हेजीनेस ऑफ लव, प्रेम का संचार करता है। और डी रिनसिएशन ऑफ वर्ल्ड, संसार से पार करवाता है, संसार से मुक्त करता है, संसार से अपवर्ग की अवस्था में पहुंचाता है, निर्वाण की अवस्था में पहुंचाता है, संसार से हमें मुक्त कर देता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, रिनंसिएशन ऑफ द वर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ इज बाल आसन हेल्पफुल, कि बाल आसन हमारे लिए किस प्रकार से सहायक है। ऑप्शन ए इज रिमूव्स स्ट्रेस, बी ऑप्शन इज बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, सी इज नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये तीनों प्रकार के जो ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं, स्ट्रेस को हटाना, शरीर का संतुलित विकास करना और सामान्य ब्लड सर्कुलेशन रखना, ये सब बाल आसन इन सब में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन पतंजलि योग सूत्र, कि पतंजलि में कितने चैप्टर हैं, कितने पाद हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी इज 8, ऑप्शन डी इज 10। देर आर 4 चैप्टर 4 पादाज इन पतंजलि योग सूत्र। ठीक, कौन कौन से पाद हैं? समाधि पाद, संभूति पाद, कैवल्य पाद और उपासना पाद। 4 पाद दिए गए हैं और उनमें अलग अलग सूत्र दिए गए हैं। हाउ मेनी क्लासिक आसनास that are associated with Lord Shiva do the ancient text mention, हमारे जितने भी प्राचीन योग सूत्र से योग से संबंधित जो प्राचीन टेक्स्ट हैं, श्रुतियाँ हैं, पुस्तकें हैं, उनमें भगवान शिव के साथ में कितने आसन को जोड़कर बताया गया है। ऑप्शन ए 136 आसन, बी 58 आसन, सी 84 आसन और डी 121 आसन। ऑप्शन सी 84 आसन। ऐसे ही कहीं पर भी आसन की संख्या निश्चित नहीं की है कितने आसन होंगे, लेकिन लॉर्ड शिवा के 84 आसन बताए गए हैं। आसन ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा कोई योग सूत्र में आसनों की संख्या नहीं बताई गई है, लेकिन लॉर्ड शिवा से संबंधित जो आसनों की संख्या है वह 84 बताई गई है। इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें। जब लॉर्ड शिवा से जोड़कर बताया जाएगा कितने आसन, तो 84 आसन है। यदि प्रश्न में आता है कि योग सूत्र में कितने आसन हैं, तो निश्चित नहीं है। कितने आसन हैं? निश्चित आसन नहीं है, कोई संख्या नहीं बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी क्रियाज इन हठ योगा, कि हठ योग में क्रियाएं कितनी होती है। ऑप्शन ए में 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9।
ऑप्शन बी इज करेक्ट। द 6 क्रियाज इन हठ योगा, 6 क्रियाएं बताई गई है। हाउ मेनी मुद्रास एंड आसनाज इन सूर्य नमस्कार, कि सूर्य नमस्कार के अंदर कितने आसन हैं और कितने मुद्राज हैं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 9। तो ऑप्शन इज करेक्ट 12 आसन एंड 12 मुद्रास। परंतु यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि सूर्य नमस्कार भी 3 प्रकार का बताया है, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप। जो सी टाइप का सूर्य नमस्कार, जिसको हम ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार कहते हैं, परंपरागत सूर्य नमस्कार कहते हैं, उसमें 12 मुद्राएं होती है। ए टाइप के जो आसन है उसमें 9 होती है, 11 मुद्राएं होती है। जबकि आपका बी टाइप का जो सूर्य नमस्कार है उसमें 19 प्रकार के सूर्य नमस्कार की मुद्राएं और आसन बताए गए हैं, प्रत्येक पाँव के द्वारा बताए गए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।